This which conference will now be recorded. was happen, or in my previous session, if I took anything, then definitely I'm going to repeat those sessions. Okay, so that is what normally I do. So we saw about the knowledgeware, and we are we are leading in the virtual session, that means online session in overall uh, Pune region. So we have very good turnaround ratio, and uh, we have the good support team who can give you 24 by 7 support. Okay, anytime. We have the YouTube subscribers, have some of the people who can help you too, who are already completed their automation with us. We have 500 plus companies in Connect, so where we can get any opportunity, we can refer you guys. Then we have 10K plus followers on in LinkedIn too, and we have very good, I mean, I can say the Google rating and other ratings also. So all these terms, knowledge where is leading right now. Now, so I know you all heard this last time. So किसी को question तो नहीं होगा उस पे, right? Or anyone has a question on that? Do you have any on that? Anyone has any question on that? No. Okay. Yeah. No, sorry. Archana, can you please mute yourself? So, okay, the people who join it today, I'll just let you know. So there's a chat window on this GoToMeeting. So on the chat window, you can ask me any question at any time. Okay, you can ask any question at any time. और इसका रीजन भी ये था कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो वीडियो है वो खराब हो जाए, राइट? मतलब ये वीडियो आप सुनोगे, सो इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट. सो बिकॉज अगर बीच बीच में कुछ और साउंड आया तो इट वुड बी इरिटेटेड फॉर यू गाइस, राइट? ओके, फाइन. चलो. Fine. Chalo, now let's move. This is about me. I have Mahesh. Sorry, I am Mahesh, and I have total 16 plus years of experience. Okay, and then I have 2 US patent on my name, as I mentioned. I did my B in computers and MB in international business and IT. I have knowledge on multiple languages and multiple technologies, and I work in the R&D department almost for 5 to 6 years, where I explore so many different libraries, open source libraries. These are all about myself. Yes, from personal, I have a son and a 6-year-old and a daughter, 2 years old. And my wife, she's working with IT industry where she's also into an automation testing. And that's it. Can we move ahead then, guys? Can we move ahead? Yes? Very good. Very good. You're answering on the chat window. Very good, guys. Excellent. Very good. Okay. Perfect. Perfect. Let's move then. Let's move then. Okay. First of all, who is getting in all for this week? Anyone of you from this batch? I'm not sure. अगर आपके साथ वो इंटरव्यू स्केड्यूल हुए, I'm not sure.
Anyone from this batch? किसी को इंटरव्यू कॉल्स आए? नो नो, फाइन फाइन, चलेगा, ठीक है। या प्रोबेबली इसीलिए शेयर नहीं किया होगा। या दैट्स ओके, इसीलिए शेयर नहीं किया होगा। You need to learn so many things, right, before you give the interviews or before you interviews. Agreed? Okay, chalo then. So we can at least see what we can do for you guys too. Okay, so let me start what we saw in the last session, as I mentioned. Okay, so this is about myself. Then we saw a Java. Anyone wants to answer? Who developed Java and why he developed? Anyone? जो लास्ट सेशन में था उसमें से कोई आंसर दे सकता है? Who developed this and why? Very good. Very good answer. Very good. Rishali, Santosh. Good answer. Yes, Mayuri. Very good. So on. So James Gosling. Good answer, Akshay Siyog. So James Gosling who developed this. Okay. And उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों बनाया? What was the objective? What was the objective? Very good. To do the communication with the consumer electronics. To do the communication to the consumer electronics. That means कुछ command दो, TV को on and off. Right? To automate. That means TV को मुझे यहाँ पे बैठे बैठे on and off करना है from my laptop. So मुझे उसके साथ communicate करना है. मुझे कुछ command देना है. On command, off command. Agreed with me? Yes? मुझे toasters on and off करना है. All those things to communicate that, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था एक लैंग्वेज। लेकिन बाद में सन माइक्रोसिस्टम ने देखा कि दिस इज टू स्ट्रॉन्ग। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था बाय जेम्स, बट इट इज टू स्ट्रॉन्ग कि इसको एक पूरा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उसका नाम बन गया बाद में जावा। ओके, उसका नाम बन गया बाद में जावा। एंड देन दे लॉन्च एज एन ओपन सोर्स। तो इसीलिए मैंने बोला था व्हाई जावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, व्हाई जावा। तो सबसे पहले मैंने बोला था बिकॉज जावा इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मीनिंग था ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर का, डिफरेंस क्या है, क्या देखा था हमने ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर का डिफरेंस? ये आपको पता होना चाहिए फुल। आई मीन क्यों? बिकॉज हो सकता है आज नहीं, फ्यूचर में कोई ना कोई आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज यूज करो, राइट, एंड फ्री का सॉफ्टवेयर यूज करो, दैट इज पॉसिबल। Absolutely right answer, Vedi. Dhananjay, Roshni, yes, Renuka, right. Yes, Harshali, absolutely right. See guys, they are saying open source का मतलब है जिसका source code, मतलब उसका कोड जो आप कोडिंग करने वाले हो, वो कोड अवेलेबल है आपके पास to do the customization or the modification. To do the customization or the modification आपके पास उसका कोड अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स। और फ्री को बोलते हैं हम लोग जैसे नोटपैड, ना उसका कोड मेरे पास है, मैं सिर्फ फ्रीली उसको यूज करता हूँ। Yes, we cannot modify, right, Renu? For free we have only access. Understood? Yes, everyone?
innovative way. See Sohan how he write app equals yes. Wow. Good. Good. ये क्लियर है यहाँ तक सबको? Can we move ahead then? ओके फिर सेकंड पॉइंट हमने बोला था जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. क्या मतलब है इसका? आज देखना ही हमको सारा. ठीक है, आज कोड लिखना है हमको हमारा, तो ये अब भी पता चलेगा हमको क्या मतलब है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब. वोरा राइट आंसर संतोष. व्हाट एन आंसर गाइस. वेरी गुड संतोष. वेरी गुड प्राजक्ता. राइट धनंजय. अक्षय. Very good, Renuka. We can write the code on one system or one platform, that means Windows, and we can run the same on the different platform like Mac OS or Linux. मतलब एक ही बार मुझे कोडिंग करना है तो सेम कोड में दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकता हूँ. उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी. यस, याद है सबको ये? Is everyone remember this? Yeah. Perfect. Very good. Yes. उसके बाद मैंने बोला था जावा इज सिक्योर विद द हेल्प ऑफ अ बाइट कोड. क्या है बाइट कोड? वन लाइनर आंसर. What an answer. Very good Santosh, Prajakta, Renuka, CEO, Akshay, Vedi. Very good. It's a machine language. Good answer, Roshni, Payal, Dhananjay. It's a machine language. Only machine can understand that language. अगर ह्यूमन समझने की कोशिश करेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर एंड आस्की लैंग्वेज. वेरी गुड हर्षाली. सो अगर कोई समझने की कोशिश करेगा तो अपने को कुछ नहीं समझेगा ह्यूमन को. सो ह्यूमन का नॉट मॉडिफाइड. ओके. फिर हमने बोला जावा इज फास्ट. जावा इज फास्ट. हम सब देखेंगे अभी कैसे सब फास्ट होने वाला है, क्या होने वाला है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये देखो यहाँ पे हाई लेवल हमने बताया था जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दैट मीन्स you can write the code on one operating system like Windows and executing the same code on another like Linux. Reusability. दूसरा नाम है इसको वोरा. Write once and run anywhere. Write once, run anywhere. Vora. Then the bytecode. Bytecode is a machine language of Java Virtual Machine. Yes, it's a machine language. Okay, so bytecode सिर्फ मशीन लैंग्वेज है. ओके, और इसीलिए कोई भी टाइप का मशीन हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, वही उसको समझ सकता है. इसीलिए आपका जावा का जो बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बनता है. समझ में आया? आपका कोड बाइट कोड में रहेगा तो आपने विंडोज में कोड लिखा तो भी विंडोज को समझेगा बाइट कोड, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है. लिनक्स में लिखा तो भी लिनक्स को समझेगा. यस और नो? Yes or no? It's a machine language, right? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? Okay. देन हमने ये 3 टर्म्स पे आए थे, जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके. बताओ जेआरई के अंदर क्या है, अगर याद होगा तो. वेरी गुड पायल. वेरी गुड आंसर. सोहन, हर्षाली, संतोष, वैदी, अक्षय. वेरी गुड. सबको याद है. वाह वाह, नाइस गाइस. वेरी गुड. यस, जेआरई के अंदर है जेवीएम है लाइब्रेरी. तो फिर जेडीके के अंदर क्या है? जेडीके में क्या है?
Very good. JRE and development tools. JRE and development tools is the right answer. JRE and development tools. कैसे? तो देखो, ये मेरा JVM है, प्लेन वर्चुअल मशीन. वर्चुअल का क्या मतलब है मैंने बताया था. What is meaning of virtual? किसी को याद है? वर्चुअल का क्या मीनिंग बोला था? Abstract, physically not present. Very good guys. Yes, physically not present. You are absolutely right. तो मतलब physically not present का एक मतलब होता है, मैं वो भी समझा दूं. अगर आपको कभी जावा इंस्टॉल करना है तो आपको exe मिलती है डाउनलोड करके, exe जिससे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हो, राइट. तो ऐसा JVM का कभी आपको जिंदगी में exe नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनबिल्ड है विद इन JRE एंड JDK, बिकॉज वो इनबिल्ड है, तो उसका exe नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं. मतलब फिजिकली आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा. जैसे JRE का आपको exe मिल जाएगा, अभी उन्होंने कंप्लीटली वन पैकेज कर दिया है, लेकिन पहले आपको JRE का exe मिलता था इंस्टॉल करने के लिए. ओके, इन दैट वे. नाउ ये है मेरा JRE ने होल्ड किया है मेरा JVM प्लस लाइब्रेरीज, दैट्स कॉल्ड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. अभी लाइब्रेरीज में क्या है? लाइब्रेरीज में है JVM का इम्प्लीमेंटेशन. क्या है लाइब्रेरीज में? JVM का इम्प्लीमेंटेशन. यस, क्योंकि JVM आपका सारा कोड कंपाइल करता है. JVM आपका सारा कोड कंपाइल करता है. तो वो कंपाइल करने के लिए उसने बोला है कि मुझे A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, D चाहिए, ऐसा JVM ने बोल के रखा है. तो इसीलिए वो सब कुछ इंप्लीमेंट किया गया है JRE में. I'll show you that what is A, B, C and D. Don't worry. But जो JVM का रिक्वायरमेंट था वो सब इंप्लीमेंट किया गया है लाइब्रेरीज में. इज इट क्लियर? उसको बोलते हैं JVM का इंप्लीमेंट. यहां तक क्लियर? सी, हमको इसके बाहर निकलना है. ओके, because you need to see the code, then you'll learn more. Okay, so just understand this concept first. अभी दूसरा एक और चीज है, JVM जब हम लोग बोलते हैं कि बाइट कोड, okay, so only understand by the machine language. So the byte code has, or Java has some specification. So Java has some specification. Specification का मतलब होता है, let's say आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, ओके, और वॉशिंग मशीन खरीद के आपके पास एक बुकलेट आया. सबको समझता है बुकलेट? एवरीवन अंडरस्टैंड बुकलेट? यूजर गाइड? यस, ओके, परफेक्ट. अगर उसने बोला है नहीं, ऑन का बटन पे क्लिक करो, पहले जो वहां पे बटन दिख रहा है उस पे क्लिक करो, देन ओनली इट स्टार्टेड. आप कर रहे हो 10-15 अलग बटन एक साथ प्रेस करके देख रहे हो ना, ऑल दोस. डू यू थिंक वो स्टार्ट होगा विदाउट ऑन? नो. तो ये होते हैं स्पेसिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशन डिफाइन किए कि मैं ऑन पे करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तब जाके ही माय वॉशिंग मशीन और माय मशीन विल बी वेक्ड अप. Okay, then there is a menu, then you select any of the option from the menu, and only those washing option will be executed. This is what it will be mentioned over that manual, or you can say user guide or the specification. Similar way, Java के भी कुछ specification है जो कि define है. Okay, वो specification सारे कहाँ लिखे गए? JRE में. अभी क्लियर हुआ ये लाइब्रेरीज में कितना बड़ा इंप्लीमेंटेशन है? जावा का पूरा इंप्लीमेंटेशन ये लाइब्रेरीज में है. अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ यहां तक?
यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका जावा का इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जेडीके। जेडीके ने बोला मैंने तो पूरा जेआरई होल्ड किया है, प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी मैंने होल्ड किए हैं। अभी डेवलपमेंट टूल्स का मतलब क्या है कि लेट्स से ऑटोमेशन टेस्टर है, डेवलपर है, उनको अपना कोड कंपाइल करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। कभी कभी उनको जावा के कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी पता होना चाहिए। अच्छा ये क्लास क्यों बना था, अच्छा ये कलेक्शन क्यों बना है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। यस और नो? यस और नो? जो अभी हमने बोला स्पेसिफिकेशन, जैसे आपको भी वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल चाहिए था। यस, वैसे जावा को भी रन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। यस और नो? So all those are inside those development tools. So all those are inside those development tools. ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। तो डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट टूल्स में क्या क्या रहेगा? डेवलपमेंट टूल्स में आपका रहेगा डिबगर, जो कि रन करने के लिए, डिबग करने के लिए यूज होगा कोड। कंपाइलर, मतलब जो कि आप कंपाइल करते हो कुछ भी कोड, पहले कंपाइल करते फिर रन करते, ठीक है। एंड फिर रहेगा जावा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इतनी चीजें रहेगी उसमें। नाउ लेट्स गो इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थ्री। कैन वी मूव हेड? कैन वी मूव हेड? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो देन, सो सबसे पहले जाते हैं, पहला उसका जो भी पिलर था, दैट इज योर जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। लेट्स सी व्हाट इज जेवीएम। सिर्फ इतना पढ़ो, मैं ये सब एग्जीक्यूट करके आपको समझाऊंगा। जेवीएम इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। थोड़ी देर पहले ही हमने बोला है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब वर्चुअल, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? पहला लाइन, यस, ओके। फिर बोलता है जेवीएम कुछ पर्टिकुलर टास्क करता है, मेन कुछ उसके टास्क है। अगर आपका कोई जावा फाइल है तो मतलब अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो उसके साथ कुछ तो टास्क करना चाहता है। तो टास्क करने के लिए उसने क्या बोला है, जेआरई को मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और जेआरई ने कहाँ पे किया है वो इम्प्लीमेंटेशन? कहाँ पे किया है जेआरई ने वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन? एनीवन? जेआरई ने इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया जेवीएम का? वेरी गुड अर्शाली, प्राजक्ता, अपूर्वा, सोहन, वेरी गुड, इन लाइब्रेरी। वेरी गुड, गुड आंसर पायल, मयूरी, स्वप्निल, वेरी गुड। सो ये इम्प्लीमेंटेशन किया है उन्होंने लाइब्रेरीज में, जेआरई ने। तो क्या रिक्वायरमेंट था जेवीएम का? जेवीएम का था कि आई वांट टू लोड द कोड, आई वांट टू वेरीफाई दैट कोड। अभी वेरीफाई, अभी आपको क्या लगता है, वेरीफाई अगेंस्ट व्हाट? वेरीफाई अगेंस्ट व्हाट यू थिंक? मैंने थोड़ी देर पहले आपको एलजी का और वॉशिंग मशीन का एक ये दिया था एग्जाम्पल। वेरीफाई अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है मेरा क्लास ऐसा ही होना चाहिए, मेरी मेथड इस टाइप से ही होनी चाहिए। ये सारे स्पेसिफिकेशन लाइब्रेरीज में से डिफाइन है। तो ये वो स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट वेरीफाई करता है कि जो फाइल मेरे पास आई है, जो बाइट कोड मेरे पास आया है, वो these are matching my all the specification or not, these are matching my specification or not, that will be verify here.
Yes, cross check, absolutely right. That will be check here. और अगर ये सही है, वेरिफिकेशन ट्रू है, एवरीथिंग इज मैचिंग एज पर योर स्पेसिफिकेशन, देन वो फाइल को एग्जीक्यूट करता है और देखता है कि हाँ एग्जीक्यूट हो सकता है। तो चलो लेट्स गिव एग्जीक्यूशन के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट टू जेआरई। रन नहीं करता, सिर्फ एग्जीक्यूट कोड करके वेरीफाई करता है और फिर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है जेआरई को कि आप यहाँ पे रन कर सकते हो। दिस फाइल इज गुड, आई हैव वेरीफाई, आई हैव लोड, आई हैव एग्जीक्यूट सीन, नाउ यू कैन रन। इट इज मैचिंग ऑल माई स्पेसिफिकेशन, लेट्स रन दिस। ये है जेवीएम का रोल। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लेट्स सी वन बाय वन, तो आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? ओके, ये बोलता है JVM। नाउ लेट्स मूव टू योर JRE। सी JRE क्या बोलेगा? JRE बोलेगा आई एम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट एंड टू रन द कोड। आपका जो जावा कोड रहेगा वो करने के लिए आपको क्या चाहिए हमेशा? JRE। रन करने के लिए आपको JRE चाहिए। देखो इसने क्या बोला है, आई एम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। मतलब JVM ने जो रिक्वायरमेंट दिया था कि आई वांट टू लोड द कोड, वेरीफाई द कोड एंड एग्जीक्यूट्स, तो उसके लिए मैंने उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करके रखा है। कहाँ पे रखा है? तो मेरी लाइब्रेरीज में। तो मेरी लाइब्रेरीज में मैंने उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करके रखा है। एंड JRE बोलता है आई एम फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब आप मुझे इंस्टॉल कर सकते हो, यू कैन सी मी ऑल्सो। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो उसने देखो एक और चीज कि जो आपके लाइब्रेरीज है, ओके, स्पेसिफिकेशन है, अदर फाइल्स मतलब स्पेसिफिकेशन, दैट विल बी यूज्ड बाय whom? That will be used by whom? JVM at runtime to do the specification, to do the cross check against the specification. Okay, now the next come here your JDK। अभी देखो मैंने बोला था कि JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट टूल, अगेन फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब आप इंस्टॉल कर सकते हो, which holds JRE plus development tool and which type of development tool? तो आपके पास डिबगर है, कंपाइलर है और जावा डॉक्यूमेंटेशन है। क्लियर है? जो मैंने पहले बोला यही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर है? so that I can show you with another diagram now। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। अभी देखो यूसेज, हर एक का यूसेज पता चलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको JVM, JRE, JDK समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी यूसेज। What is the usage of your JVM? Usage of your JVM, Java Virtual Machine। तो मैंने बोला था it will just provide you the environment। JVM सिर्फ आपको environment provide करता है। JVM आपको सिर्फ environment provide करता है, that's it। JVM आपको सिर्फ environment provide करता है। तो JRE क्या करता है फिर? JRE सिर्फ कोड रन करता है। JRE सिर्फ कोड रन करता है। तो फिर JDK क्या करता है? See what JDK is doing। JDK आपका प्रोग्राम रन भी करता है और प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो। मतलब आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो और आपका कोड रन भी कर सकते हो। लेट्स से अर्चना ने कुछ कोड लिखा तो सोहन कैन रन, स्वप्निल ने कुछ कोड लिखा तो रेणुका कैन रन। यस, तो अभी मुझे बताओ कि फॉर यू गाइस
आप लोगों को ये 3 में से क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे आप अपना काम ऑटोमेशन शुरू कर सको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस। क्यों? चलो मैं समझ गया, सबको समझ गया कि आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जेडीके? कोई इसका आंसर होगा आपके पास? स्पेसिफिक आंसर फॉर दैट? Any specific answer for that? Yes, because you wanted to do the programming. Because you wanted to do the programming. आपको आपका कोडिंग करना है। आपको आपका कोडिंग करना है, इसीलिए आपको क्या लगेगा? जेडीके, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करना है। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? तो बाय डिफॉल्ट आपके जेडीके में सब कुछ आ जाएगा, जेआरई भी, जेवीएम भी। Will it make sense till this point now, everyone? Yes? समझ में आया क्यों जेडीके इंस्टॉल किया? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक और बेसिक देख लो। कभी किसी ने पूछ लिया व्हाट इज जावा पी, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो अपर लेयर है, जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, दैट इज माय जावा डेवलपमेंट किट। इसमें 3 कंपोनेंट है, 4। जावा पी मतलब जावा डॉक्यूमेंटेशन, याद रखना हमेशा। अगर आपने आपके स्कूल कॉलेज में, पता नहीं हाउ यू डिड, बट जब मैं अपने कॉलेज में था तो हमारे पास तो इक्लिप्स होता नहीं था। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों को हमारा कोड नोटपैड में लिखना पड़ता था। नोटपैड, यू नो दैट नोटपैड एवरीवन? तो उसमें हम लोग हमारा जावा कोड लिखते थे, और जावा सी कमांड से मैं रन करता था। जावा सी क्लास ए डॉट जावा, इसको कंपाइल करना बोलते हैं। ये कंपाइलर है। जावा सी, सी का मतलब है कंपाइलर। जावा पी, पी का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन। और जावा, और फिर वही हम लोग रन करते थे सिर्फ कमांड जावा क्लास ए डॉट जावा से। पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है वो, कभी ये कमांड सुना है? आपके एजुकेशन में था? यस, यस, ओके। यू आर टू यंग गाइस, सो होपफुली आपने नहीं देखा हो। हमारे जैसे बुड्ढे लोगों ने देखा है ये चीजें। ओके, वो पॉसिबल है, करेक्ट। योगेश भी बोल रहा है यस, आपके जैसे बुड्ढे लोगों ने देखा होगा, हमने नहीं देखा। चलो, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव देन गाइस। ओके, सो ये हो गया मेरा जेडीके। नाउ ये हो गया मेरा जेआरई। जेआरई के अंदर आ गया सिस्टम लाइब्रेरीज एंड जेवीएम। अभी जेवीएम के अंदर क्या आता है वो मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। जेवीएम के अंदर आता है इंटरप्रेटर एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था, इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था, याद है सबको? अगर पूजा को तेलुगु आती है और अगर प्राजक्ता को नहीं आती है, तो लेट्स से वैदेही इज अ इंटरप्रेटर who knows both the language, Hindi and Telugu, and she can translate, mediator between Pooja and Vaidehi. Yes, she can just get the input and give the output to someone else. याद है सबको? याद है सबको? या तो यही इंटरप्रेट होगा आपका मशीन लैंग्वेज। ये करता है जेवीएम। जब वो लोड करता है कोड, वो देखता है
बाइट कोड, अच्छा, इंटरप्रेट करो, मशीन को समझाओ, मशीन को भेज दो। आपने लिखा तो प्लेन इंग्लिश में, उसको इंटरप्रेट करो, मशीन को बताओ। इंटरप्रेटर का मतलब है who can take the input from someone, interpret it in the understanding language। जैसे आपने जावा कोड लिखा है आपके प्लेन इंग्लिश में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये तो आपको समझ में आ रहा है। मशीन को समझेगा क्या ये? मशीन को समझेगा? मशीन को नहीं समझेगा धनंजय, राइट? तो मशीन को समझाने के लिए कौन बैठा है? तो मशीन को समझाने के लिए इंटरप्रेटर बैठा है। Interpreter will take that, convert into a machine language and give the input to machine. Now you understand? Clear है? Okay. तो अभी देखते हैं हम कि एक मैंने लास्ट टर्म बोला था कि जावा इज फास्ट, ये मैंने क्यों बोला था? चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको ये भी दिखा दूं कि लेट से एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। ओके, लेट से एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। मैं एक डेवलपर हूं। ओके, मैं एक डेवलपर हूं। नाउ डेवलपर हूं मतलब मुझे मेरे मशीन पे क्या लगेगा? क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे क्या लगेगा? प्रोग्रामिंग करना है तो क्या लगेगा? जेडीके, जहां पे मैं प्रोग्राम करूं, उसको डिजाइन करके रन करूं और मुझे मेरे आउटपुट आए, उसको बोलते सर्वर। उसको बोलते एक सर्वर, जहां पे मैंने अपना प्रोग्रामिंग किया, एग्जीक्यूट किया और आई कैन गेट द आउटपुट, जहां पे मैंने ये डिप्लॉय करके रखा है। ये मेरा एक बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ। अभी लेट्स से आई हैव अ कस्टमर लाइक संतोष, सीओ, स्वप्निल, सत्यदीप। आई हैव दिस 4 कस्टमर्स। तो डू यू थिंक उनको प्रोग्रामिंग करना है? डू यू थिंक उनको प्रोग्रामिंग करना है? संतोष, सीओ, स्वप्निल एंड सत्यदीप को? दे आर जस्ट अ कस्टमर, they are just accessing that banking application. Yes or yes or no? They are just accessing that banking application. उनको एक्सेस करना है और उनको रन करना है, सिर्फ कोड रन करना है, राइट? उनको सिर्फ वो कोड रन करना है और उनको अपना आउटपुट देखना है। So what they need in this case? What they run only? सिर्फ रन करने के लिए क्या चाहिए उनको? JRE. So they got the class file, they just run it and they got the output. तो वो चारों, सत्यदीप एंड ऑल, who are they? Who are they? So they are the client, server and client and server relationship. Now you understand high level what is client and server relationship. I'm trying to help you to understand these basics. Okay, ये समझ में आ रहा है बेसिक, कि जहां पे मैंने अपना कोड और डिप्लॉय करके रखा है, दैट इज माय सर्वर। जो क्लाइंट उसको यूज कर रहा है वो क्लाइंट मशीन, दैट मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप। नाउ यू अंडरस्टैंड बेसिक एट लीस्ट एवरीवन, क्योंकि ये डिटेल में जाएंगे हम लोग, अभी सिर्फ बेसिक से चलो। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yeah, excellent, excellent, excellent. So I just show you this because of the example that आपको भी प्रोग्रामिंग करना है तो आपको जेडीके लगेगा, आपको रन नहीं करना है, ठीक है? आपको भी इसलिए जेडीके लगेगा, ठीक है? अभी मैंने बोला था कि जावा इज टू फास्ट, जो टर्म हमने बोला था, जावा इज टू फास्ट, याद है? जावा इज टू फास्ट, तो उसका डेफिनेशन मैंने बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। याद है सबको? तो ये उसका डेफिनेशन है। अभी जेवीएम करता क्या है? जेवीएम करता क्या है? लोड्स द कोड, वेरीफाइज द कोड,
executes the code and provide you the runtime environment. Is it clear? Is it clear? यही 4 टास्क करता है वो, याद है सबको? याद है सबको? अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ जावा इज फास्ट? लेट्स से मेरा पूरा कोड इंटरप्रेट हो गया, जेवीएम के पास आ गया। लेट्स से मेरा पूरा कोड इंटरप्रेट हो गया, जेवीएम के पास आ गया, ठीक है? अभी जेवीएम के पास 2 चीजें थी, एक था इंटरप्रेटर और दूसरा क्या था? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट? JIT। JIT का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, just in time compilation, you can say in this way, just in time compilation, okay? Just in time compilation, clear है everyone? yes, just in time compilation। अभी जस्ट इन टाइम क्या करता है? अभी मैं दोनों का पहले डिफरेंस बताता हूँ। इंटरप्रेटर भी आपका वही है, कंपाइलेशन ही कर रहा है, आपका कोड ले लेके वेरीफाई करवा रहा है, लेकिन JIT क्या करता है? सो सबसे पहले JIT आने से पहले जावा इंटरप्रेटर पे ही काम करता था। तो इंटरप्रेटर क्या करता था? लेट्स से आई हैव ऑल माय बाइट कोड, तो इंटरप्रेटर टेक्स द फर्स्ट लाइन, दैट मींस फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड, लोड्स द कोड, वेरीफाइज, एग्जीक्यूट्स एंड प्रोवाइड रन टाइम। फिर से सेकंड लाइन लिया, फिर से लोड्स, वेरीफाइज, एग्जीक्यूट, थर्ड लाइन लोड्स, वेरीफाइज, एग्जीक्यूट, फोर्थ लाइन लोड्स, वेरीफाइज, एग्जीक्यूट। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेस था। इट्स टू लॉन्ग, यस और नो? ये रिपीटेटिव प्रोसेस टू लॉन्ग, राइट? कि हर एक लाइन को लेके आ रहे हो, लोड कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज टू लॉन्ग। एग्रीड विथ मी? एग्रीड विथ मी? यस। तो इसीलिए जावा ने बना दिया जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो उसने क्या किया जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में? उसने पूरा बाइट कोड, मतलब पूरा क्लास फाइल लोड्स एट वंस, इट लोड्स एट वंस, पूरा बाइट कोड लोड कर दिया एक ही बार में। देन वेरीफाइज एट वंस, एक ही बार में वेरीफाई कर लिया। देन एग्जीक्यूट एट वंस, एक ही बार में एग्जीक्यूट कर दिया। एंड देन प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट। सो डू यू थिंक दिस इज अ रिपीटेटिव स्टेप्स? हर एक बार हर एक लाइन को लेके लोड, वेरीफाई, एग्जीक्यूट कर रहा है? नो। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन ने क्या कर दिया? वन टाइम लोड्स द फाइल, वेरीफाइज एट वंस, एग्जीक्यूट एट वंस एंड प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट एट वंस। और उसके बाद भी जो फाइल आपने वेरीफाई कर लिया है उसको एक कैशे मेमोरी में रखता है। कैशे मेमोरी सबको समझता है? मेमोरी सबको समझता है? लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कैशे मेमोरी क्या है। एक बेसिक बताता हूँ मैं आपको। आप लोग अगर आपके गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर पे अगर आप आपके बैंकिंग से लॉगिन करो या कोई जीमेल से लॉगिन करो, तो आप हमेशा जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड डालते हो? डालते हो आप हमेशा? नहीं डालते हो, क्यों? बिकॉज आपका यूजर एंड पासवर्ड इट इज सेव्ड इन द मेमोरी कैशे। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया क्या बोला मैंने? बिकॉज इट इज सेव्ड। So because it is saved in the cache, because it is saved in the cache memory, that's why आप हमेशा नहीं डालते हो। तो JVM भी क्या करता है? जो पूरी फाइल, ये पूरा जो फाइल है, जो पूरा वेरीफाई हो गया उसको ले जाके कैशे मेमोरी में रखता है। तो मतलब अगर यूजर को फिर से वो फाइल चाहिए तो ये डू यू थिंक वो फिर से लोड करेगा, वेरीफाई और एग्जीक्यूट करके देखेगा, या वो बाय डिफॉल्ट यहीं से उठा के लेके आएगा कैशे से? क्या करेगा? What it do? Yes, it will take it from cache. Absolutely right.
इट विल टेक इट फ्रॉम कैशे। तो उसका बहुत ज्यादा समय बच गया लोड और वेरीफाई और एग्जीक्यूट करके देखने में। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों फास्ट हो गया जावा। नाउ यू अंडरस्टैंड जावा फास्ट क्यों हो गया। एवरीवन, एग्जांपल, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, 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 परफेक्ट। तो मुझे आपको 4 फीचर दिखाने थे जावा के, और मुझे आपको ये समझाना था कि हमको जेडीके क्यों चाहिए। यहां तक अभी सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो हम लोग अभी ये सब पीपीटी वीपीटी बंद करते और हम लोग अभी चलते एक्चुअल काम पे। ओके, व्हाई फास्ट? ओके, ओके रेणुका, रेणुका देखिए, इंटरप्रेटर क्या करता था, 1 बाय 1 लाइन ला को लोड करेगा, फिर वेरीफाई करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। सो डू यू थिंक दैट इज अ स्लो प्रोसेस? हर एक लाइन को लेके आओ, लोड करो, वेरीफाई करो, एग्जीक्यूट करो एंड प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट। डू यू थिंक इट इज अ स्लो? यस और नो? Every line, right? Once you're doing that with every line, definitely it's a slow process. Yeah. तो इसलिए जावा ने अपना एक कंपाइलर बनाया, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। वो क्या करता है, ये हर एक लाइन का जो पूरा एक फाइल जो था उसमें कि हर एक लाइन जो लेके आ रहा था इंटरप्रेटर, ये पूरी फाइल ही एक साथ लेके आता है, उसको लोड वन टाइम ही कर लेता है, वेरीफाइज एक ही बार में कर लेता है अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, एग्जीक्यूट करके देखता है अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, एंड इट विल प्रोवाइड यू द रन टाइम इन्वायरमेंट। तो वन टाइम में अगर ये पूरा काम हो गया तो आपका टाइम सेव हो गया। यस, सो टाइम सेव हो गया। नाउ सेकंड व्हाट, कि इसके बाद भी वो फाइल यहाँ पे कैशे में रख देगा, मतलब एक मेमोरी में सेव करके रखेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी को भी ये कोड में से एक का कोई फंक्शन भी कॉल करना है तो वो फिर से जेवीएम के पास जाएगा, तो वो फिर से लोड वेरीफाई तो करेगा नहीं, तो जेवीएम बोलेगा अरे मेरे पास तो ऑलरेडी कैशे में है। ओके, ऑलरेडी कैशे में है, go and take that. Payal, can you please mute yourself? Okay, go and take this. तो उसने जाके कैशे से उठा लिया। So that's how it saves the time. और इस चक्कर में जस्ट इन टाइम कंपाइलर ने जावा को फास्ट कर दिया, एक साथ पूरी फाइल लोड करके डन। पूरा फाइल उसके बाद जो वेरीफाइड फाइल है पूरा उसको कैशे में रखो, जब भी चाहिए यूज करो। Got my point, everyone? कैशे क्लियर तब होगा जब आपका प्रोग्राम क्लोज होगा सोहन, दैट इज ऑटो साइकिल बाय जावा। ओके, ये जावा की कैशे में रखता है। ठीक है, आपका जैसे जावा प्रोग्राम खत्म उसने क्लोज कर दिया। ओके, ओके, चलो, सो लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। Now you need to jump on the things that is needed for all of you. That is needed for all of you. That is a coding, a basics. पहले वहां से चालू करते हैं। सबसे पहले सबने जावा इंस्टॉल कर लिया अपने मशीन पे? Everyone did that? ओके, धनंजय निकालो मूर्त, उसका डाउनलोड हो गया है तो इंस्टॉल करो। गौरी, धनंजय, very good guys. So most of you did that. Okay, so let me go back and show you
From where you will get it? So अगर आप जाओगे आप बोलोगे डाउनलोड जावा, ओके। सो डाउनलोड जावा अगर आप बोलते हो तो आपको गूगल में जाके जब डाउनलोड जावा बोलोगे तो आपको ओरेकल का साइट आता है, ओके। क्लिक ऑन दिस जावा डाउनलोड्स, क्लिक ऑन दिस यू फर्स्ट URL ऑफ ओरेकल जावा डाउनलोड्स। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्जन दिख रहे हैं, ओके। कि अच्छा मेरा लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है। तो अगर आपका विंडोज है तो विंडोज का 64 बिट का जाके यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर लो, ओके। अगर आपको डायरेक्टली EXE चाहिए इंस्टॉलर तो आप यहाँ से ले लो JDK। कैन यू सी सब JDK दे रहा है? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस एवरीवन? लुक एट हियर, JDK 18 विंडोज x64 बाइनरी, सबको दिख रहा है ये? अगर आपके पास OS है तो जाओ मैक OS में एंड गेट DMG फाइल फ्रॉम हियर, इमेज। यू कैन धनंजय, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। MSI इज योर इमेज, इमेज को भी एक्सट्रैक्ट करके आपका EXE इंस्टॉल होगा, दैट्स नॉट एन इशू। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ वंस यू डिड दैट, वंस ये डाउनलोड हो गया आपके पास, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है जावा के इंस्टॉलेशन में। Still, if you need, I will share my video of Java installation. How do we install Java on machine? अगर आपको तो भी चाहिए तो, ठीक है। You can directly install that Java on your machine. Will it make sense to everyone? और अगर आपको इंस्टॉलर भी चाहिए तो we'll provide you that installer also. Don't worry. Okay? Got my point? क्लियर है? अभी मेरे पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। सो यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन इन द वीडियो, डोंट वरी। इट्स टू सिंपल गाइस। मैं जानता हूँ 35 में से 30 लोग कर चुके हैं इंस्टॉल, बट स्टिल इट्स टू सिंपल फॉर अदर्स, द रिमेनिंग 5, ओके। कुछ नहीं है, आपने जावा का कोई भी एक इंस्टॉलर डाउनलोड किया तो आपको जब आप इंस्टॉल शुरू करोगे वो आपको पूछता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, फिनिश, डन। उसके बाद अगर बोलता है कि आपका मशीन रिस्टार्ट करो तो कर दो, नहीं बोलता है तो छोड़ दो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? बिल्कुल। विदाउट इंस्टॉलर कैसे डाउनलोड करोगे सोहन? कैसे जावा आएगा तुम्हारे पास? इंस्टॉलर नहीं रहेगा तो जावा कैसे आएगा? कुछ तो चाहिए आपको इंस्टॉलर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, राइट? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सी अक्षय डिड इट। नहीं चाहिए गौरी सिंह, नहीं चाहिए कुछ भी, ओके। व्हाट इट मींस गौरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। You can install it later on, okay? We'll not waste our time here on the installation. You'll get all those things, don't worry Gauri, ठीक है? Because I want to show you some important things of the Java जो आपने PPT में देखा है उसको एटलीस्ट हम देख लेंगे तो आप ये जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। I don't want to miss those things today, okay? You can install it later on, not an issue. आप डाउनलोड करो और अभी आप पैरेलली चालू रखो आपका इंस्टॉलेशन टिल द पॉइंट योर सेशन इज ऑनगोइंग, योर इंस्टॉलेशन विल बी डन, बिलीव मी। 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, ओके। लेट्स मूव नाउ। अभी मैंने जावा इंस्टॉल कर दिया। नाउ लेट्स से आई हैव द जावा ऑन माय मशीन। वेरी गुड प्राजक्ता, सी प्राजक्ता डन इन टाइम गौरी, वेरी गुड प्राजक्ता। स्टार्ट गौरी फ्रॉम योर साइड टू। Okay, so now
जावा इंस्टॉल कर दिया, मतलब क्योंकि मुझे जावा डेवलपमेंट करना है इसलिए मुझे जावा चाहिए था, इंस्टॉल्ड इट। अभी मुझे कोड करना है तो मुझे क्या चाहिए, कोडिंग करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, एडिटर। व्हाट एन आंसर सत्यदीप, संतोष, वेरी गुड आंसर, very good answer. So what we need, we need an editor. एडिटर का क्या मतलब है, एडिटर का क्या मतलब है, कौन बताएगा? अगर आपके पास कोई वर्ड फाइल आती है और आपको बोला गया कि उसको अपडेट करो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उसमें एडिट करते हो, यस और नो, यस और नो, करेक्ट है? ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एडिटर का, यस यू आर राइट, हु इज दिस यूजर अगेन? ओके, वैदी, वेरी गुड आंसर वैदी। सो एडिटर का मतलब है वेयर वी कैन राइट द कोड, एडिटर का मतलब है वेयर वी कैन राइट द कोड, ओके, वेयर वी कैन राइट द कोड, we can compile the code, we can run the code, and we can see the output result। इसके लिए मुझे एडिटर चाहिए। जैसे जावा के लिए मल्टीपल एडिटर्स है, एक है आपका इक्लिप्स, फिर है आपका नेटबीन्स, फिर है आपका इंटेलिज, फिर है आपका नोटपैड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था नोटपैड, याद है? मैंने अपना पूरा कोडिंग अपना 4 years 5 years मैंने नोटपैड में किया है स्टार्टिंग में, ओके। सो देन यू हैव द नोटपैड टू, यस, नोटपैड प्लस प्लस, टेक्स्टपैड, एवरीथिंग आर योर जावा का एडिटर। एग्रीड विथ मी, एग्रीड विथ मी, यस, क्योंकि यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो इन सारे एडिटर्स में। तो इस एडिटर को एक फुल फॉर्म भी है, इसको बोलते हैं IDE, IDE, इसको क्या बोलते हैं? IDE। IDE, Integrated Development Environment, okay, this is Integrated Development Environment, मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो मुझे चाहिए इक्लिप्स का IDE, इसको ही आप एडिटर भी बोलते हो, इसी को आप एडिटर भी बोलते हो। तो मुझे कौन सा IDE चाहिए, मुझे कौन सा IDE चाहिए? इक्लिप्स, यस, yes, so again go to your Google and mention download Eclipse, mention download Eclipse, why Eclipse? okay, देखो अगर आप मुझे पूछोगे तो इट्स अ स्मार्ट IDE, इसका आंसर है वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। धनंजय, धनंजय से why Eclipse, why Eclipse? It's a smart IDE, it has intelligence, okay, it has intelligence। इसका मतलब ये है कि अभी मैं नोटपैड में लिख रहा हूं, अगर मैं इसी को जाके जावा सी दिस क्लास A डॉट जावा करके रन करूं तो मुझे एरर आएगा, यस और नो, यस और नो, आएगा कि नहीं धनंजय? क्योंकि डू यू थिंक ये कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये जावा में अलाउड नहीं है ऐसा लिखना, विदाउट
लिख नहीं सकते हो कोई स्ट्रिंग, उसको पता ही नहीं है नोटपैड, बट ये किसको पता है, किसमें डिफाइन है ये, किसमें डिफाइन है, ये डिफाइन है आपके स्मार्ट आईडी में, ये डिफाइन है आपके स्मार्ट आईडी में, Eclipse. That's why we are taking the smart ID. Now why Eclipse, not why not IntelliJ? It's all up to you. If you ask me, I take Eclipse because फिर से वही आंसर है, out of 100, 80 people are using Eclipse if they are doing some Java development. So I wanted to focus again on the majority. That's the reason. I have all those IDs, NetBeans and IntelliJ and everything. But if you ask me, it is only the answer behind it. Did you get my point? Yes? Practical सोचो हर चीज को. Okay? Now let's go back. You said download Eclipse. तो आपको Eclipse org करके एक साइट दिखता है. Go to that Eclipse org site. Go back here and whichever the latest version, you can go and download. You can go and download. So current latest version is आपका है IDE 2022 and 3, that means March. Every quarter एक रिलीज करते हैं Eclipse. So ये मार्च में आया है. ओके, Eclipse वर्जन. अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए और आपको कुछ और चाहिए, दूसरा वर्जन चाहिए, तो आप ये डाउनलोड पैकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस एवरीवन? लेट्स से आपको कोई ओल्डर वर्जन चाहिए. कैन यू सी दिस डाउनलोड पैकेजेस एवरीवन? Let's click on that download packages. Let's click on that download packages and see, you will see the multiple releases from the Eclipse on the right hand side. Look at here, more downloads. Can you see this? Other build 3, फिर 12, फिर 9, 20, 21, 6, 3, फिर से 12, 9, 6 and older version. इससे भी older चाहिए तो और click करो older version पे. And then you can see all the list. Look at here. You can see all the list. सारे वर्जन आपको यहाँ पे दिखेंगे Eclipse के. Say you can download Neon, Oxygen, Photon or any latest. It's all up to you. If you ask me, I have Neon on my machine. I have these also. Okay, I use these IDs also. But if you ask me, I prefer to use Neon always. तो आप Neon पे click किया आपने and then 3 packages and then download your Neon ID for Java developers like this one. Windows for 64, Mac machine और Linux, आपके पास जो भी मशीन है उसका यहाँ से Eclipse का वर्जन डाउनलोड कीजिए. These are not trial version. These are, Eclipse is an open source, okay? You can download, you can use it. It's a free, not an open source. It's a free. This is a free software. Now you understand free and open source का मतलब? Dhananjay, this is a free software. You can get it from here, जो भी आपको चाहिए. Windows वाला चाहिए, Mac चाहिए, Linux चाहिए. Got my point, everyone? यहाँ तक clear है सबको? यहाँ तक clear है सबको? Yes? अगर आपको चाहिए तो जावा का इंस्टॉलर प्लस इक्लिप्स का पूरा वर्जन also we are going to share with you. If you want, we can share. Do you need it? Do you need it? आपको ये दोनों वर्जन चाहिए आपके मशीन पे, जावा और इक्लिप्स? ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आपको चाहिए तो we will share that. Okay, already see, संतोषी सिंह, already that is shared. आप लोग देखते नहीं हो क्या? It is already shared.
परफेक्ट, ओके। सो फिर इंस्टॉल करो, क्या प्रॉब्लम है? Go and install it. Okay. Okay. Now let's see, guys. Once I download and install Java, once I download and get it my Eclipse, okay, Eclipse, then I need to start my work. मैंने ID देख लिया, मैंने Java देख लिया, अभी मुझे मेरा काम शुरू करना है. This is a good thing now. अभी मैं जो यहाँ से चीजें बोलूंगा वो आपको सारी याद रखनी है, क्योंकि अभी तक ये जो डाउनलोड किया वो कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा टिल नाउ. ओके, अभी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं अभी आपको हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा यहाँ से. सो प्लीज नोट इट डाउन और प्लीज सी दैट अगेन ऑन योर वीडियो, यू विल फाइंड इट. गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? यस. ओके, सो सबसे पहले आपने इक्लिप्स डाउनलोड कर लिया, ये देखो इक्लिप्स इंस्टॉल किया. कैन यू सी दिस ऑन द बॉटम? मेरे पास इक्लिप्स का वर्जन दिख रहा है. कैन यू सी दिस? जो मैं माउस ओवर कर रहा हूं, कैन यू सी दिस? मैंने उसको टैग कर दिया, पिन कर दिया मेरे डेस्कटॉप के साथ. दिस? यस. ओके, तो मैंने सबसे पहले उस पर क्लिक किया. जैसे क्लिक किया उसने बोला डू यू वांट टू रन द इक्लिप्स? सी आई हैव माय इक्लिप्स वर्जन हियर. ओके, सो दिस इज द फोल्डर फ्रॉम वेयर this is the Eclipse version which I do have. If I click on run, then see which version I have. Can you see which version I have? Neon. I have a Neon version. अभी वो बोल रहा है कि यहाँ पे वर्क स्पेस दो. मुझे अभी एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर देना है. व्हाट इज वर्क स्पेस? चलो बताओ, सिंपल आंसर देना, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे. वर्क स्पेस क्या है? सिंपल आंसर देना. वेरी गुड आंसर, अंकुर. See, Ankur given the answer. Place to work. Place to work. Okay. Space to work. Right, Renuka? Where will write the code? चलो अभी एक और चीज बताता हूं मैं आपको, इसको और सिंपलिस्ट टर्म में बताता हूं. लेट्स से आप अभी कहीं पे बैठे होंगे, हो सकता है आपके ऑफिस में बैठे हो सकता है आपके घर पे बैठे हो, और बैठ के आपने लैपटॉप पे या तो यू आर सीइंग द वीडियोस और यू आर डूइंग सम कोडिंग. द स्पेस दैट यू आर सिटिंग इज योर वर्क स्पेस. जैसे कॉलेज, जहां जो सीट पे आप बैठते हो दैट इज योर वर्क स्पेस. राइट पूजा? यस, लोकेशन. तो यही इक्लिप्स में वर्क स्पेस का मीनिंग है. अभी इक्लिप्स में वर्क स्पेस का मीनिंग है एक सिंपल फोल्डर, अ डायरेक्टरी, जहां पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओगे. और आज के बाद आपका फुल स्टैक सेलेनियम ऑटोमेशन का वर्क स्पेस रहेगा ये, जो अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? आपका वर्क स्पेस रहेगा ये, जहां पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे, जहां पे यू नीड टू वर्क थ्रू आउट ऑल द सेशन. That is what your workspace for this Eclipse now onwards. Is it clear? Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? ठीक है, मुझे वर्कस्पेस बनाना है. वर्कस्पेस मुझे मेरे नाम का चाहिए. Let's go. So in my Selenium folder, I am going to create a new folder. I am going to create a new folder. तो आप लोगों को भी यही करना है. आपका कहीं पे भी एक फोल्डर रहे, उसके अंदर जाओ और एक न्यू फोल्डर बनाओ. फोल्डर सबको पता है कैसे बनता है? It is not a memory issue. It is just a directory where you are going to work. Okay? समझोगे धीरे धीरे. Hold on.
So do you know how to create the folder? कोई भी फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक किया, न्यू, कैन यू सी द फोल्डर हियर? यस, आप सी ड्राइव में भी बना सकते हो संतोष, कहीं पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी। आई एम नॉट सेइंग कि सी ड्राइव में बनाना है, ओके। आई सेड ऑन योर सिस्टम यू कैन क्रिएट एनीवेयर, वो आपका वर्क स्पेस हो गया, ये याद रखना, कहीं पे भी बनाओ। सो आज से वो आपका वर्क स्पेस हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो आई सेड न्यू एंड फोल्डर, चलो नया फोल्डर बन रहा है। I am giving this folder name March 2022. Is it clear? ये आपका वर्कस्पेस बन गया आज के दिन में। March 2022 ये आपका वर्कस्पेस बन गया, ये आपका वर्कस्पेस बन गया। Is it clear? Is it clear? Is it clear? ये इक्लिप्स को कैसे पता चलेगा कि मेरा वर्कस्पेस मैंने बना दिया? मैंने एक फोल्डर बनाया, अभी मैंने बना दिया, ये इक्लिप्स को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा इक्लिप्स को? Yes, I need to browse it by giving that path. So go to the browse, then go to your old desktop, your Selenium, and what was the name that you created? March 2022. Yes? Yes? Yes or no? यही बनाया था हमने फोल्डर, क्लियर है? ब्राउज कर सकोगे सब लोग? सबको समझ में आता है ब्राउज करना मतलब गो टू दैट पाथ? यस, ओके, क्लिक ऑन ओके। सी माय वर्कस्पेस, उसने बोला आज से आपका वर्कस्पेस ये है, मैंने बोल दिया आज से मेरा वर्कस्पेस ये है, आज से मेरा वर्कस्पेस ये है, ठीक है। इक्लिप्स को मैंने किया, मेरा वर्कस्पेस सिलेक्ट किया एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। दिस इज माय फर्स्ट एक्शन टुडे टू स्टार्ट माय इक्लिप्स। क्लियर है यहां तक एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear everyone? Yes. So Eclipse आपने डाउनलोड किया, Eclipse को ओपन किया, आपने खुद का एक वर्कस्पेस बनाया, मतलब आपने खुद का एक फोल्डर बनाया और उसी को जब आपने ब्राउज किया यहां से तो आपने उसका नाम दिया। कैन यू सी? आपको ऊपर दिख रहा है मार्च 2022 इज योर वर्कस्पेस। कैन यू सी दिस? देखिए ऊपर, यस, ये हो गया मेरा वर्कस्पेस Eclipse के लिए। ओके, अभी जब फर्स्ट टाइम आप कोई वर्कस्पेस में लॉन्च करोगे तो आपको ये वेलकम स्क्रीन दिखता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं, कोई मुझे वेलकम नहीं चाहिए। नाउ व्हाट? नाउ दिस इज व्हाट यू कैन सी द आउटपुट। अभी आपके ये वर्कस्पेस में एक भी प्रोजेक्ट है? कैन यू सी हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? एक भी प्रोजेक्ट है? नो, तो ये ब्लैंक है। तो मैं हर एक व्यू आपको समझाता हूं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट व्यू या पैकेज एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या तो पैकेज एक्सप्लोरर। इसका मतलब है आपने अगर इसमें 10 प्रोजेक्ट बनाए तो 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे लाइन से दिखेंगे, क्योंकि आपने एक ही वर्क स्पेस में आपके 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना दिए। तो ये आपका वर्क स्पेस है। समझ में आया एवरीवन? समझ में आया? ये आपको 10 दिखेंगे और वो आपको हमेशा ट्री स्ट्रक्चर में दिखेगा। ये आपको हमेशा ट्री स्ट्रक्चर में दिखेगा, हमेशा आपको वो ट्री स्ट्रक्चर में दिखेगा।
ट्री स्ट्रक्चर सबको समझता है? व्हाट इज ट्री स्ट्रक्चर? ट्री स्ट्रक्चर सबको समझता है? हायरार्की, पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, यस, फिर उसका चाइल्ड एंड लाइकवाइज, समझ में आता है? यस, सिमिलर टू द डेटा स्ट्रक्चर, यस। तो आपको यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर में दिखेगा, दैट आई विल शो यू इन सम टाइम, ओके? यस, एब्सोल्युटली राइट, इन सीक्वेंस, राइट, सो ऑन। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको 2 मिनट बाद, ठीक है? ये हो गया मेरा लेफ्ट विजेट। नाउ राइट विजेट है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने कुछ टास्क बना के रखे, मैंने बोला अरे यार आज तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं कल कर देता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने एक अपना टास्क बना के रखा मेरे याद करने के लिए, मुझे याद रहने के लिए। अच्छा, टास्क मैं कल कर लूंगा, कोई यूज नहीं है, नोबडी इज यूजिंग इट, ओके, लीव इट। बॉटम विजेट इज सेइंग एरर्स, कंसोल, क्या क्या फेलियर्स है वो सब यहाँ पे दिखता है। कंसोल का मतलब है जहां पे आपका आउटपुट आएगा, जो आप एग्जीक्यूट करोगे आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। कि लेट से मैंने प्रिंट कर दिया सोहन, तो मुझे यहाँ पे सोहन दिखेगा, ओके। अगर मैंने कुछ गलत किया है मेरे कोडिंग में तो मुझे यहाँ पे एरर भी दिखेगा। अगर मेरे कोड में कोई एक्सेप्शन आता है तो मुझे वो एक्सेप्शन भी यहाँ पे दिखेगा। तो ये है मेरा बॉटम विजेट। Now and very important widget is this center widget. इसको मैं हमेशा बोलता हूं एक्सपर्ट व्यू। इसको मैं हमेशा बोलता हूं एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू का मतलब है जहां पे आपको अभी एक्सपर्ट होना है। You need to be an expert on this view. That is called expert view. Is it clear? Is it clear? यहाँ पे आप करोगे आपका पूरा कोडिंग, यहाँ पे आप आपका करोगे पूरा कोडिंग। ये है आपका एक्सपर्ट व्यू। विल इट मेक सेंस? विल इट मेक सेंस एवरीवन? यहां तक क्लियर है चारों व्यू? ये आपका पूरा हायरार्की दिखेगा, यहाँ पे एरर, एक्सेप्शन या आउटपुट दिखेगा। राइट साइड में कुछ टास्क वास्क रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। बीच में आप करोगे कोडिंग। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो लेट्स गो एंड क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। कैन यू सी द फाइल ऑप्शन? Can you see the file option here on the top? Everyone? Yes? Go to file. Can you see new? Can you see new? Yes? तो जिसको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट लिख के आ रहा है वो जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो, जिसको नहीं आ रहा है वो अदर पे क्लिक कर सकता है। ओके, सो आई विल शो यू बोथ द वे। लेट्स से मैंने अदर पे क्लिक किया, न्यू, अगर यहाँ पे आपको जावा प्रोजेक्ट लिख के आ रहा है तो जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, अगर लिख के आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो अदर पे क्लिक करो, अगर आपको अदर दिख रहा है नीचे तो। क्लिक ऑन अदर, सिलेक्ट द जावा प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर। अदर पे जैसे ही जाओगे एक विजार्ड ओपन होता है, सिलेक्ट द जावा प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आएगा आपको न्यू प्रोजेक्ट का विंडो, ये आएगा आपको न्यू प्रोजेक्ट का विंडो। अभी ये समझ के चलिए आप यहाँ पे क्या है। कैन यू सी कहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है? कैन यू सी दिस लोकेशन? कैन यू सी दिस लोकेशन वर्क स्पेस? सबको दिख रहा है ये वर्क स्पेस कहाँ बन रहा है? ये एवरीवन, कैन यू सी दिस? यस, यस। सो देखो आपने वर्क स्पेस बनाया, उसका फायदा क्या है? सारे प्रोजेक्ट जो भी आप बनाओगे वही वर्क स्पेस में रहेंगे, मतलब आपको वहीं पे याद रहेगा हमेशा, ओके मेरा वर्क स्पेस यहाँ पे था। देन द प्रोजेक्ट नेम। अभी मैं जावा की कोडिंग गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स बोलता हूँ। प्रोजेक्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल, कैपिटल लेटर। प्रोजेक्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल।
followed by a camel case. Project name always starts with capital followed by a camel case. Camel case? Camel case? कैमल आपने सबने कैमल देखा है सबने? नहीं देखा, वेरी गुड। किसी ने नहीं देखा कैमल? ओके गुड, वैदेही को छोड़ के अभी सबने देखा। ओके सो कैमल केस का मतलब है जो भी नया लेटर रहेगा, जैसे मेरा पहला लेटर, जो भी मेरा वर्ड रहेगा, जैसे मेरा पहला वर्ड है जावा, तो द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे सेशन का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, उसको बोलते हैं कैमल केस। तो एवरी न्यू वर्ड का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, जैसे वन का ओ कैपिटल, सेशन का एस कैपिटल, जावा का जे कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस। इसको बोलते हैं कैमल केस। अभी क्लियर है कैमल केस? एवरी न्यू वर्ड का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ये क्लियर है कैमल केस? ये क्लियर है कैमल केस? यस। तो मैंने बोला प्रोजेक्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल फॉलोड बाय द कैमल केस। ये जावा का कोडिंग स्टैंडर्ड है, इसके लिए कोई वाई का आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा पैकेज है, ये मेरा क्लास है। ये डिस्टिंग्विश होने के लिए कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड बने गए। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सत्यदीप? ओके सो दैट्स व्हाई ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स है। सो जैसे ये प्रोजेक्ट नेम है जावा सेशन 1, अभी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मेरा लोकेशन बन गया, इसके अंदर एक फोल्डर बन रहा है जावा सेशन 1 नाम का। कैन यू सी दिस? ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया एवरीवन? ओके अभी उसने बोला कि आपको ये जो भी बनाओगे, यहाँ पे कुछ जावा कोड लिखोगे, उसको रन करने के लिए जेआरई लगेगी। तो आपने जो भी जावा इंस्टॉल किया है वो बाय डिफॉल्ट एक जेआरई उठा के यहाँ पे लेके आता है। जो भी आपके पास जावा है, मेरे पास 3-4 जावा है, उसने 1.8 ले लिया, दैट्स ओके। वो जेआरई आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए यहाँ पे देगा। बाकी का सब भूल जाओ, विल सी दैट डे बाय डे। अभी के लिए इतना याद रखो कि दिस इज कोडिंग स्टैंडर्ड्स, दिस इज व्हाट माय लोकेशन and this is how it selected a Java to run my code. And let's finish. जैसे आप फिनिश करोगे, look at here लेफ्ट साइड में एक हायरार्की में एक प्रोजेक्ट आ गया पैकेज एक्सप्लोरर में। Can you see this? Can you see this? Everyone? Everyone? Can you see this everyone? Yes? और देखो यहाँ पे एक एरो है, वो ओपन करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे अभी क्या मिल रहा है। Do you think this is a tree structure? This is a parent, उसका एक child. Do you think this is a tree structure? Yes or no? Yes or yes? This is a tree structure. Clear है? Clear है यहाँ तक सबको? Clear है यहाँ तक सबको? Perfect. तो मैंने तो बनाया मेरे वर्क स्पेस में, चलो वर्क स्पेस में भी जाके देखते कुछ हुआ है क्या। ये था मेरा वर्क स्पेस मार्च 2022। मैं फोल्डर में आया, वहां पे ओपन करके देखता हूँ कुछ बना क्या। ओह यस 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 यस, सी यहाँ पे एक फोल्डर बना है जावा सेशन 1। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर बना है सेशन 1। ओपन इट। Oh, can you see there are multiple files are created? Can you see there are multiple files are created? Yes or no? By default. तो ये किसने बनाया? कौन है इतना स्मार्ट? किसने बनाया? मैंने तो एक ही फोल्डर बनाया था, कौन बनाया? इतना स्मार्ट है कौन? तो इतना स्मार्ट है आपका इक्लिप्स।
Now you understand why Eclipse? Who asked me that question? I forgot. Now you understand why Eclipse? Who is that smart person? Now you understand? जाके इसने यहाँ पे सारे फोल्डर बना दिए और उसने बोला कि ठीक है, मैंने बना के तो रखे, ये सब मैं रन टाइम यूज करूंगा, मतलब जब मैं कोड रन करूंगा ये सब यूज करूंगा, लेकिन यूजर को इतने थोड़ी दिखाने हैं मुझे। यूजर को इतना क्या समझेगा सेटिंग्स में क्या है, क्लास मार्क में क्या है, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यूजर को चाहिए सिर्फ सोर्स कोड, SRC, यस और नो, जहां पे वो कोडिंग करेगा, यस और नो। तो इसीलिए उसने इक्लिप्स पे सिर्फ एक फोल्डर लेके आया। लुक एट हियर, कैन यू सी दिस? इतना स्मार्ट है इक्लिप्स, कैन यू सी दिस? इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक फोल्डर लाया जो यूजर को जरूरत है, जहां पे यूजर अपना कोड लिखेगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? एवरीवन? एवरीवन? यस, परफेक्ट। और अभी मैंने बोला था कि जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, आप तो जावा में कर रहे हो, तो जावा के कुछ स्पेसिफिकेशन रहेंगे, जावा का कुछ एग्जीक्यूशन करना रहेगा। तो इसके लिए देखो, हर एक प्रोजेक्ट को इक्लिप्स ने स्मार्टली क्या असाइन कर दिया है? क्या असाइन कर दिया? जावा, JRE। ये देखो, इसके अंदर ये सारी लाइब्रेरीज हैं, कुछ JVM का इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ आपके स्पेसिफिकेशंस है, जैसे RT.jar में आपके सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। So can you see that? It is assigned that by default to that project. Clear है? Clear है? For doing the execution. Clear है यहाँ तक? Everyone? ये clear है? Yes? Yes? Perfect. Perfect. अभी चलते हैं आगे SRC में। अभी चलते हैं आगे SRC में। अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट? अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास। अभी मुझे चाहिए एक मल्टीपल, मुझे क्लासेस बनाने हैं, मुझे अपना कुछ काम करना है। तो सबसे पहले SRC पे राइट क्लिक कीजिए, SRC सिलेक्ट करना, जिसको सोर्स फोल्डर बोलते हैं। सोर्स का मतलब है कोड, जो कोड आपका सारा कोड होल्ड करेगा उसको सोर्स फोल्डर बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो आपका सारा कोड, जितना भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, वो सारा होल्ड करता है, उसको सोर्स फोल्डर बोलते हैं। ओके, सो लेट्स राइट क्लिक हियर, you said new, and you can see the package. Can you see the package? Can you see the package? Word, right click on SRC, new and package, so that मैं explain करता हूँ आपको package क्या है। दिख रहा है सबको? Everyone? Oh, am I audible? Is my voice clear, guys? Okay, चलो ठीक है, ठीक है, audible, okay. Okay. Santosh is saying I am not audible. I think Santosh wives call him. That's why he's saying. Okay, he's saying. जानबूझ के वाइफ के सामने ये अरे सर सुनाई नहीं दे रहा है। सो वाइफ को भी लगेगा वाओ, संतोष इज वेरी बिजी, इज कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग। Oh, you're traveling to Kolhapur, Santosh. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Hope your wife didn't heard what I'm saying. Okay. पता चला नहीं तो संतोष कल से सेशन में ही नहीं है। Okay. Travel safely. Okay, Santosh. Perfect. Perfect.
Okay, चलो. So right click on SRC, new and package. What is package? कोई बता सकता है? किसी के पास Amazon का पैकेज आता है, फ्लिपकार्ट का पैकेज आता है? कभी भी कुछ आपने ऑर्डर किया हो और पैकेज आया हो, ऐसा होता है आपके साथ? So what is package then? Simple answer. English. Plain English meaning है यहाँ पे, ओके? हमको कोई भी ज्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं देना ये समझने के लिए. Yes, it's a collection. Very good, Vaidehi. So जावा में पैकेज का मतलब है कलेक्शन ऑफ अ क्लासेस, मतलब मल्टीपल क्लासेस हम लोग एक पैकेज में रख सकते हैं. ये पैकेज का डेफिनेशन है. समझ में आया? मल्टीपल क्लासेस डॉट जावा फाइल्स हम लोग पैकेज में रख सकते हैं, ये उसका मीनिंग है. ओके, सो मल्टीपल classes we can put it in the package is what a collection of classes is called a package. So अभी देखो मैं इधर पैकेज पे क्लिक किया, वो बोल रहा है अच्छा पैकेज बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो? सी उसने पूरा पाथ दिया. ये प्रोजेक्ट के SRC फोल्डर के अंदर आप एक पैकेज बना रहे हो. एंड जावा कोडिंग स्टैंडर्ड सेज पैकेज नेम always starts with small followed by a camel case. Package name always starts with small followed by the camel case. Can you see this? हर एक वर्ड का पहला लेटर camel है, I mean capital है. Can you see that? और एक इसमें बोला जाता है कि पैकेज नेम डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर. सी अगर मैंने नंबर से चालू किया तो देखो इसने एरर दे दिया. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? वो बोलता है नहीं नंबर से चालू मत करो, ये कोडिंग गाइडलाइन नहीं है. चलो मैंने सोचा कोई स्पेशल कैरेक्टर से चालू करूं, बोलता है नहीं ये भी कोडिंग गाइडलाइन नहीं है, मत करो. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? So package name starts with small, that means lower case, followed by the camel case. मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर इज कैपिटल एंड जस्ट फिनिश इट. सी आपका ट्री स्ट्रक्चर बनते जा रहा है. पेरेंट, सॉरी ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, इट्स चाइल्ड. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? देखो आपका ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है. कैन यू सी दैट? यस. तो मैंने ये पैकेज बनाया, चलो फोल्डर में जाके देखते इसका क्या बेनिफिट हुआ. SRC के अंदर बनाया था तो जाके देखते हैं SRC में. Oh, we got that package here. Can you see this? Can you see this? Java Session 1 package एक फोल्डर बन गया SRC के अंदर. Can you see this everyone? देखो ये मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, उसका रीजन है. आपको ये वन टाइम समझ में आया तो उसके बाद आपको कभी देखने की जरूरत नहीं है इसको पीछे. ओके, सो SRC में एक पैकेज बन गया, दैट मीन्स एक फोल्डर बन गया. तो ये बीन क्या है, ये कौन सा फोल्डर है? चलो बीन भी देखते हैं हम लोग क्या है. ओह, same folder created in the bin folder also. Same folder created in the bin also. Look at here. जो SRC में बन रहा है वही आपका bin में भी बन रहा है. So what is bin? What is bin? कौन इसका आंसर दे सकता है? नहीं. What is bin? बाइनरी कोड, बाइट कोड. कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? बिन फोल्डर में. अभी आपको समझेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर. बिन इज अ बाइनरी कोड, बाइट कोड. सो बिन में आपका हमेशा क्या रहेगा? पूरा बाइट कोड रहेगा. और SRC में हमेशा आपका सोर्स कोड रहेगा जो ह्यूमन अंडरस्टैंड. बिन में बाइनरी कोड, बाइट कोड जो मशीन कैन अंडरस्टैंड. ये क्लियर? यहां तक दोनों फोल्डर का डेफिनेशन क्लियर है? स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहेगा दोनों में. क्लियर है यहां तक? यस.
अभी मैं सोर्स कोड दिखाता हूँ आपको। लेट्स मूव। चलो मैंने पैकेज बना दिया। मैंने तो बोला था पैकेज क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ अ जावा क्लासेस। सो राइट क्लिक and see, I'm going to click creating a new class. So right click on your package, new and a class. अभी क्लास का मतलब क्या है? अभी के लिए आप इतना सोचो, सिर्फ इतना याद रखो, मैं क्लास को डिटेल में लूंगा। ओके सुहास, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं क्लास को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके बट अभी के लिए इतना समझिए कि class is just a template. Class is just a template. Template का मतलब है जहां पे मैं अपना कोड लिखूंगा, मैं अपने मेथड्स फंक्शंस लिखूंगा, मैं अपने वेरिएबल बनाऊंगा, मुझे जो लिखना है वो करूंगा। तो क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट, इतना याद रखो। ठीक है, मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको बाद में, पहले बेसिक समझते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट। ओके परफेक्ट। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लास। मैंने क्लिक किया क्लास में। अभी देखो क्या बोल रहा है, कहां पे बन रहा है ये क्लास? तो ये फोल्डर, सोर्स फोल्डर SRC, उसके बाद इस पैकेज के अंदर जावा सेशन 1 पैकेज, और ये है आपका नेम। सो क्लास नेम इज इक्विवेलेंट टू योर प्रोजेक्ट नेम। जैसा आपने प्रोजेक्ट नेम दिया है वैसा ही सेम क्लास नेम दे सकते हो। वही क्लास नेम का कोडिंग गाइडलाइंस बोलता है। क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल। Okay, class name always starts with capital, followed by a camel case. Class name always starts with capital, followed by a camel case. बाकी का सब कुछ वैसे ही रहने दो, अभी उसको नहीं देखते हम लोग, मॉडिफायर ये वो फालतू चीजें, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। तो क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल फॉलोड बाय अ कैमल केस। लेकिन एक चीज जरूर सिलेक्ट करना, वो है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। एक चीज जरूर सिलेक्ट करना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। क्यों चाहिए ये? क्योंकि लेट्स टेक वन एग्जांपल। घर में आने के लिए आपको एक तो एंट्री पॉइंट चाहिए। घर में आने के लिए एक आधा तो एंट्री पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के अंदर आना है तो आपको एक आधा एंट्री पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला आपने सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी, ना वॉल है ना डोर है, एंड यू जस्ट कंप्लीटेड, आपने स्लैब डाल दिया। ओके सो डू यू थिंक योर होम इज हैविंग एनी एंट्री पॉइंट? नो। अगर डोर ही नहीं बनाया आपने तो डू यू थिंक एनी एंट्री पॉइंट? नो। तो मुझे मेरे क्लास में जाने के लिए एक एंट्री पॉइंट चाहिए, और वो है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट। इसीलिए मेरे क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एंट्री पॉइंट चाहिए जेवीएम को। जेवीएम बोलेगा मैं कोड कौन सा लोड करूं, मुझे कौन बताएगा, मुझे चाहिए कोड लोड करने के लिए। तो बोलेगा ले सिलेक्ट करो मेन। So that's why we selected this public static void main. Is it clear? Is it clear till this point? Everyone, यहां तक समझ में आ रहा है? आपको मुझे एक चीज दिखानी है जो आपको समझ में आएगी इसके बाद। Is it clear? Okay, let's finish this. Let's finish this. ये बन गया मेरा पहला जावा क्लास। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो सो दैट यू गाइस कैन सी। ओके ओके, कैन यू सी दिस नाउ? टेक्स्ट दिख रहा है सबको अभी? ये आपका पैकेज बन गया, ये आपका पहला क्लास बन गया, ये आपका एंट्री पॉइंट आ गया। कैन यू सी दिस एवरीवन? एवरीवन कैन यू सी दिस? और आपका देखो ट्री स्ट्रक्चर भी बढ़ते जा रहा है।
प्रोजेक्ट, फिर सोर्स फोल्डर, फिर पैकेज एंड देन क्लास। तो आपका क्लास का एक्सटेंशन देखो क्या है, जो आपने क्लास बनाया, क्या एक्सटेंशन है इसका, क्या एक्सटेंशन दिख रहा है, डॉट जावा। क्या एक्सटेंशन है, डॉट जावा। इसका एक्सटेंशन था डॉट जावा। तो फिर से जाके देखो यहाँ पे एसआरसी में, चलो एसआरसी में गया मैं, मेरा पैकेज आ गया, पैकेज में जाके देखो, ओके यस दिस इज व्हाट माय डॉट जावा फाइल इज क्रिएटेड। सी इसका टाइप भी डॉट जावा फाइल है। कैन यू सी दिस, यहाँ देखो टाइप, कैन यू सी दिस। तो अभी देखते बिन में क्या बना, ये बिन में आया, बिन में भी पैकेज आया। ओ सी इसका टाइप क्या है, कैन यू सी द टाइप, कैन यू सी द टाइप। और ये है आपका क्लास फाइल, ये है आपका बाइनरी कोड, मतलब बाइट कोड। चलो अभी आई विल आस्क पायल, हर्षाली, सोहन, धनंजय एंड ऑल ऑफ यू टू रीड दिस फाइल फॉर मी। बताओ ये क्या है, हु इज गोइंग टू रीड दिस फॉर मी। सिर्फ धनंजय कैन रीड, आई नो। जिसको वाइफ की लैंग्वेज समझती है ही कैन अंडरस्टैंड दिस। यस धनंजय, okay, is it class? Seriously, Saptadeep? And Dhananjay, you are answering? Is it what means class? Oh, you are not married, so फिर आपको नहीं समझ सकता ये। संतोष को समझ में आएगा। While going in Kolhapur, he can understand them. Perfect. But anyone, do you understand this? Do you understand this? No. This is a machine language. See, this is a machine language. ये देखो, ये यहाँ पे, this is a machine language. This is a machine language. Only machine can understand. Only machine can understand. अभी समझ में आया जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना है। जो ये मशीन पे है वो लिनक्स मशीन को भी समझेगा, जो ये मशीन पे है वो मैक मशीन को भी समझेगा, और जो ये है ये ह्यूमन कैंट अंडरस्टैंड। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज बाइट कोड? अभी समझ में आया व्हाट इज बाइट कोड? Now you understand what is bytecode? ये क्लियर है सबको यहां तक? Yes? Yes? Okay. So अभी कोई बोलेगा कि bytecode नहीं समझ में आया? No. Bytecode definitely समझ में आएगा हमको, वो human cannot understand that. Okay? So there are two folders always created. There are two folders created in every project. One is bin, one is src. src hold your .java, जो कि आप पढ़ सकते हो ये सारा चीज, ठीक है, ये .java फाइल है। और bin holds a binary code, बाइट कोड, जो होता है .class फाइल, जो ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओनली मशीन कैन अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? ये क्लियर है यहां तक एवरीवन? Is it clear everyone? Yes? 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 I know we are going too slow, but मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो, but you guys can tell me. COB is saying yes, we are going too slow. So do you want me to increase the speed? आप चाहते हो मैं speed, or do you think this is okay that we are going too slow?
It's okay. It's okay. Okay. Fine. Perfect. Perfect. ठीक है. अगर ठीक है तो then we'll not go a bit faster. Okay. That's okay, guys. Not an issue. Not an issue. Perfect. Satyadev is saying not okay. So what is not okay, Satyadev? Speed is not okay? You're saying? What it is? Do you want me to increase the speed, you said? Perfect speed. Okay. Okay. ठीक है. So guys, please check your internet connection, okay? और अगर किसी का कुछ भी मिस होता है तो आप वीडियोस देख सकते हो. Did you receive your videos? कोई चैलेंज है वीडियो मिलने में? Okay, no challenge, right? You are receiving all your videos. Okay, perfect. So what I'm suggesting, अगर हो सकता है, that is possible, कि now we are working from home and all those, sometimes internet works, sometimes not. तो आपका इंटरनेट जा सकता है. Okay, so please go and see this video one more time. Okay? Yes, you are right, Sohan. You need to revise that individually. Absolutely right. और अगर आप चाहो तो आप अपने अपने ग्रुप बनाओ. अगर ग्रुप नहीं बनते तो आप अपने ग्रुप में पूरे एक साथ सब लोग डिस्कस करो. That's okay. You can do that. Okay, Dhananjay. Make sure you'll get it today. Okay? ग्रुप बनाइए और जहां पे आप लोग आप ये डिस्कस कीजिए. Okay? You will learn so many things. Okay, Pradeep, I'll make sure you will get it too. And I'll make sure you will get the installation video for Java and Eclipse also. Okay? आप लोग वो देख के आपका इंस्टॉलेशन कर सकते हो. कोई बड़ा काम नहीं है वो. ठीक है? इंस्टॉलेशन नॉर्मली आप लोगों ने आपके करियर में जो किए होंगे पहले, वही सेम इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे करना है. कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं है. डोंट वरी. Renuka, you can put it that on the your chat window. Support team will connect with you immediately. Okay? जिनको वीडियो नहीं मिला वो आप अपने चैट विंडो पे बता सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपका होगा या गूगल ग्रुप होगा, जहां पे भी आप बता सकते हो. ओके, क्लियर? यस. ओके, सो बिलीव मी, नेक्स्ट सेशन विल बी मोर इंटरेस्टिंग ऑन दैट. ओके, क्योंकि मुझे अभी आपको ये सब बताना है. ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऑल दोस थिंग्स. क्योंकि अभी आपका एक्चुअल कोडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. आज तो हमने सिर्फ बाइट कोड समझ के दिया कैसे बनता है. दैट्स इट. अभी हमको ये समझना है पूरा. ओके, so let's meet in the next session, guys. We'll close it here today and we'll meet in the next session hopefully on Friday, I guess, right? So Friday at the same time. I'm requesting everyone, please have a look at the video, walk through that video, देखो और फिर से try करके देखिए ये सारी चीजें. Okay? Okay. ठीक है. Have a good day and take care of yourself, your family, guys. Do not go outside without wearing a mask. Take care. Thank you so much for joining. Have a good day. Bye.